Good evening. Please have a seat. Rafaqat Aziz. Yes, sir. Rafaqat Aziz, I have been going through your DAF, and something that has brought to my attention is that you have not been involved in any sports. You have not been involved in any extracurricular activities except carom. Neither any leadership you held in college. Why this whole section is, 99% blank? Can you please give me some rational explanation behind this? सर जो मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है बोथ इन द स्कूल एंड द कॉलेज जो कि इन क्राइटेरिया में फॉल करती हो, दैट्स वाई सर मैंने इसे मेंशन नहीं किया है। वाई वो सर मैंने जो कैरम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली है, तो दैट्स वाई मैंने इसे मेंशन किया है। But don't you think it's a kind of petty excuse that you are saying you haven't got any excuse? Everybody gets any kind of excuse in its lifetime, but you are saying you have not got any kind of excuse. सर इस पे मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। डेफिनेटली आई थिंक मेरे पास अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे नहीं थी, तो दैट्स वाई मैंने इनमें से किसी चीज़ को परस्यूट नहीं किया। बट मे बी इन द फ्यूचर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आए एंड मैं इनको परस्यू करूँ सर। So, talking about your personality, it seems like you have an introvert personality. How will you consider your personality, whether you are an extrovert or you are an introvert? डेफिनेटली सर, मैं एक लिमिटेशन मानता हूँ कि एक इंट्रोवर्ट में हो कहीं ना कहीं, और इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ सर। जैसे कि अब मैं ग्रुपिंग्स में, जैसे मैंने क्लब जो है वो ज्वाइन किया था जब मैं सुरनकोट में था, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बनवाया। वहाँ Being an introvert personality, don't you think you are not fit for the bureaucracy, for the civil services? How will you, justify your position for the examination you have given, that you want to become the bureaucrat and you need to be extrovert and if you want to become the bureaucrat, if you want to, devote your services to the state or to the nation, we can say, then there is a need of an extrovert personality because it's a public domain job. But you are an introvert. सर नथिंग इज़ परफेक्ट, मेरा ये मानना है। एक्सेप्ट गॉड नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड। तो मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट गाय, और इसके ऊपर काम किया जा सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेड आई एम पॉसिबल। Okay, any plans you have made? You are saying that you can work out on these things. What can you work out? What can you work out on these things? What will be your approach? For example, you get selected, okay, and now you got the opportunity to become from introvert personality to an extrovert personality. So, what will be your approach? सर आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल कि आई सेड ऑलरेडी कि आई जॉइन द क्लब। मोर ओवर में जो मेरा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, मैं भी उसको भी बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ख़ास तौर के से जो प्रिपरेशन है उसमें मैंने ये फोकस किया है, जैसे कि हम जब न्यूज़ डिस्कशंस करते हैं तो हम सब फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी में बैठ के हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ। इससे मुझे दो बेनिफिट होते हैं सर। एक जो ये मेरे अंदर इंट्रोवर्ट की क्वालिटी या लिमिटेशन You could have written the news discussion in the extracurricular activities, interests or hobbies also besides carom. So why didn't you wrote it? सर बिकॉज कैरम इज़ द ओनली थिंग दैट। But you just said that you do the newspaper discussions in the evening with your friends. It is a kind of activity, extracurricular activity we can say. It is a kind of interest also. Even you can make it as a hobby. यस सर वी कैन से हॉबी सर मैं नहीं कहूँगा, इंटरेस्ट भी हाँ मैं कहूँ। What is the difference between an interest and hobby then? सर इंटरेस्ट एंड हॉबी में एक चीज़ कॉमन है कि आप उसे पसंद करते हो, यू लाइक इट। बट हॉबी में एक चीज़ ऐड हो जाती है कि आप उसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो सर। But hobby is something you do it for the leisure. And you cannot get all the time in the world for leisure every time. So how can you define it like the way you are defining it? सर हॉबी के लिए पूरे दिन में आप डेफिनेटली अपने जो स्केड्यूल होता है उसमें कहीं ना कहीं 1 to 2 आवर्स उसके लिए आप डिवोट करते हो। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसको आप कंसिस्टेंटली नहीं करते। No, it's not true. You are mistaken here. Hobby is not something you have to do it on the consistent manner. For example, if you have a certain, work that is left, you have a certain amount of baggage. किसी तरह का काम आप रहता है वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप हॉबी को टाइम दोगे, काम को दोगे, ये बताओ। सब पहले तो काम होता है, इसीलिए हॉबी जो है तो उसमें तो हॉबी आपकी रह जाएगी फिर। सर हर हॉबी रह जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसा तो कोई सा काम होगा नहीं जिसका 20। But you said na you have to be consistent in hobby. Why you need to be consistent for making something as a hobby?
Sir, being consistent doesn't mean that it is a part of your schedule. It means that whenever you're free, you're going to proceed that. I mean, from consistent word, I mean sir that. Okay, let's talk about your optional subject. What's your optional subject? Sir, it's sociology. Sociology. Okay. Can you tell me different types of kinship system? Yes, sir. We have consanguineal kinship system. We have conjugal kinship system, sir. Likewise, on the basis of resistance, we have neolocal, matrilocal, patrilocal, duolocal. On the basis of authority, we have patriarchal, matriarchal, and right now we have egalitarian system as well. Can you name me some tribe which is matriarchal from the southern India, particularly from the southern India? They have a special, Nair tribe has a special tradition of their marriage. Kathleen Gough basically has stated that tradition. Can you tell me the name of that system? You know about the Kathleen Gough, right? She is a very famous sociologist. So I read about her, but what exactly she said, I am not able to recall it right now. But from my limited knowledge, I am able to recall that yes, some kind of choice, marriage choice is there that is in the hand of the girl, and specifically the for the growing of the children of the woman, the brother of lady is responsible. Okay, tell me your opinion whether there should be matriarchy in the society or there should be patriarchy in the society. And I don't need the balanced answer that there should be both, because it's a very common thing. Diplomacy, I don't want it. Give me one-sided answer. सर मैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी बात करते हैं, इनिशियली ट्रेडिशनली वी आर टॉकिंग अबाउट पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल, बट राइट नाउ क्योंकि जो वुमेन की पोजीशन है वो अच्छी हो रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसलिए वी हैव एन एगैलिटेरियन सिस्टम. राइट नाउ हम ये नहीं कह सकते देयर इज पैट्रियार्कल मैट्रियार्की, बट राइट नाउ वी हैव अ सिस्टम ऑलरेडी विच इज एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज न्यू लोकल कपल सामने आ रहे हैं, न्यूक्लियर हो चुकी है फैमिली, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है. और सर मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा, रिसेंट डेटा ही JNK का ही, कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे था JNK स्पेसिफिक 2023, उसके अकॉर्डिंग जो वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन है वो 32% तक इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू 2015 व्हेन इट इज ओनली 23%. But what about the parliament legislature? They have not even discussed the women reservation bill. But we have the reservation in the panchayati system, in the urban local bodies. Why the government is so reluctant about it? What do you think about that? सर वी कैंट से कि वी आर रिलक्टेंट एक्चुअली. 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने लाया था, उसके बाद लास्ट टाइम 2008 में जब हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे ये राज्यसभा से पास हो गया था, बट क्योंकि हाउस लोकसभा से पास नहीं हुआ था तो पार्लियामेंट के जो लोकसभा है उसके ख़त्म होने की वजह से बिल लैप्स कर गया था. अभी भी कई हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे मैं शशि थरूर को करूँगा मेंशन, इन्होंने और कई अदर पार्लियामेंटेरियंस से भी इसको मेंशन. But he is in the opposition party. So obviously he will say something which the ruling party is not doing. But the thing is that, don't you feel that the ruling government is patriarchal in nature? Since we are talking about this term only, talking about this topic, sorry. So don't you think that the ruling government is patriarchal in nature? Tell me about it. Sir, we can't say it is patriarchal in nature because they do a lot for the women. अगर हम मेंशन करें, फर्स्टली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम बात करते हैं जो वुमेन के अंदर एनीमिया था जो उस केसेस को लेकर, तो हमने पोषण अभियान 2017 में लॉन्च किया था, जिसकी वजह से एनीमिया के केसेस कम हुए. अगेन मैं अपनी स्टेट को सर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा. मैन एंड वुमेन सर्वे जो 2023 में आया है, उसके अकॉर्डिंगली जो एनीमिया का रेट था वुमेन में JNK में वो 50% था सर, इन द एज ग्रुप ऑफ 90 to 35, बिकॉज ऑफ पोषण अभियान. एंड लाइक we have the initiative Tally Manas. Talking about your Poshan Abhiyan, we have Poshan 2.0 also. What is the difference between the Poshan Abhiyan scheme and Poshan 2.0 scheme? सर एक्चुअली जो पोषण अभियान था ये 2017 से लेकर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2022 तक था, उसको हमने फर्दर एक्सटेंड किया है सर. और मोर ओवर सर इसमें एक कुछ लिमिटेशन थी, लाइक हमने 1000 रुपीज़ अलोकेट किए थे इसके लिए. हमने जब 2020 में इसका असेसमेंट किया तो 906 करोड़ रुपीज़ ही हम लोग खर्च कर पाए थे. हमने इस चीज़ को भी देखना था कि ये जो अमाउंट खर्च नहीं हुआ है वो कहीं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि 3 लोग चीज़ों पे. बेसिकली देयर हैज़ बीन एन इंटीग्रेशन ऑफ एन अदर प्रोग्राम इन द पोषण 2.0. कैन यू नेम दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम? सो कैन आई टेक सम टाइम? एक्चुअली देयर आर 4 प्रोग्राम्स, हमने उसकी जगह 2 लाए. एक मिनट, आई विल टेक सही. ये आपका पोषण अभियान, यस सर, एडोलेसेंट्स
गर्ल्स के लिए प्रोग्राम था, प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, उसको भी हमने इंटीग्रेट किया है। हमारे पास 4 लास्ट थे, हमने इसमें 2 में किया। एक पोषण अभियान है सर, अनदर देयर आल्सो, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इसमें हमने जो प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल था इसको इंटीग्रेट किया When है। you talk about the self-help groups, how it got originated, through which program, particular program, can you name me that program? So I am not able to recall it right now. Seva Initiative 1970. Yes sir, self employment women association Gujarat by Ila Bhatt. Okay. Yes sir. Okay, that will be all from my side. Sir? So, as sir mentioned that there is not much there in your dev to be talked about. So let's talk about certain general things which are happening around. So seeing the current scenarios almost everywhere, what is being talked about is the problem of floods, right? So what do you think is the solution? Because this is not something which is happening for the first time. Right from 2013 Kedarnath tragedy, if you see the present scenarios in Himachal Pradesh, today nothing has changed. So there is no lesson learned in last 10 years. What's your take on this? सर वी कांट से कि हमने कोई लेसन लर्न नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम अगर कोट करते हैं केदारनाथ को, जिसकी वजह से 5,700 पीपल आर डाइड एंड 4,200 विलेजेस आर वाइप्ड आउट। उसके बाद सर हमने फ्लड प्रोन जो एरियाज़ थे उनकी अपने मैपिंग स्टार्ट की थी सर। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है सर, ये 1998 का इंसिडेंट है। इट वाज इन मालपा, अगेन इन उत्तराखंड सर। दैट टाइम आल्सो 400 पीपल डाइड सर। हमने उस टाइम पे जियो पोजिशनिंग जो है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन पोजिशनिंग, हमने उस पर भी काम करना स्टार्ट किया सर। हमने ऑल वेदर रोड बनाई है सर, नो डाउट इन इट, बट सर क्योंकि इसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे मैन मेड तो हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, माइनिंग हम करते हैं इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज़ में, और एनजीटी कई बार भी इस चीज़ का संज्ञान लेती है। बट इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अगर हम हिमालयाज़ की बात करें तो ये ज़्यादा स्लोपी है। ये न्यू माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन जो यंग माउंटेन्स हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ आर देयर सर, और इसलिए कहीं ना कहीं जोग्राफिकल अगर हम इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो सर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। बट सर हम So what you are saying is that we have no role to play here. Every year we'll have to wait for such strategies there. सर ये नहीं हम कह सकते हैं हमारा कोई रोल नहीं है, बिल्कुल हमारा एक रोल है, बट हमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को कंसिडर करके चलना होगा सर। जैसे अगर हम नेचुरल फोर्सेस की जहाँ तक बात करते हैं तो कई सारे एनजीओज़ की रिपोर्ट्स है जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स हैं आप इसमें प्रोसीड मत करें। तो हमें जो हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं उसको हमें और ज़्यादा ब्रॉडर करने की ज़रूरत है सर। हमें जो सिविल सोसाइटी और जो कॉमन लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, उन्हें अपनी पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है सर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमने लैंडस्लाइड की मैपिंग की है, अब हमें सर उसे रियल टाइम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि अपने इतने हम सैटेलाइट्स मौजूद हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, पर्टिकुलरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कि हम रियल टाइम पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं सर। अगर हम अभी भी गूगल पे सर्च करते हैं, इवन अगर हम नासा की वेबसाइट पे देखें, जो हमें मैपिंग मिलती है वो रियल टाइम पे नहीं है सर, कहीं ना कहीं वो पुरानी होती है, एक दिन पुरानी, कुछ घंटे पहले। तो हमें रियल टाइम पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और इसके अलावा सर कई अदर इक्विपमेंट्स भी हम इंस्टॉल करें। फॉर एग्जांपल जो इस एरिया की जो फोरकास्टिंग है, इसके लिए कुछ शॉकर वेव्स मशीन्स होती हैं सर, जिन्हें हम वहाँ पे इंस्टॉल करें। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ इट्स राइट नाउ सर। हम ये भी इंस्टॉल करें। मोर ओवर सर यहाँ पे IMD का भी एक बहुत बड़ा रोल है। IMD को इसरो के साथ मिलकर सर मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करके इंक्लूडिंग द लोकल कम्युनिटी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यस सर। So you made a mention of satellites. So with respect to a joint collaboration, NISAR एक concept है. So do you have any idea about it? सर एक्चुअली इट इज़ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज़ देयर। इसके अंतर्गत सर हम सन को जो है वो स्टडी करेंगे, पर्टिकुलरली जो उनकी कोरोना होता है बाहर वाला। One more thing, like you made a mention of mining. So we all know that the states which are towards the western side, the Jharkhand and parts of West Bengal, all these states, they are very rich with respect to the minerals. लेकिन वो richness जो है, that is not at all reflected in the economy of those areas. If you compare the western states with the eastern ones, the one like Gujarat, Maharashtra, they are way well flourished. But when it comes to the other side, the story is entirely different, even though they are very much rich with respect to the minerals. So what do you think are the reasons कि वो उस potential को टैप नहीं कर पाए अभी तक? सर अगर हम गुजरात की एग्जांपल लेते हैं स्पेसिफिकली, जैसे आपने मेंशन किया, पहली बात तो वो ओशन के नज़दीक है सर, उसको इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। दे हैव अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी उन्हीं की है। अगर आप
झारखंड This might be your Odisha and and other will it सर वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर मोर वे बेटर इन कंपैरिजन टू झारखंड एंड छत्तीसगढ़ सर ईस्टर्न कोस्ट ओके सर वेस्टर्न को एक नेचुरल बेनिफिट ये भी है कि वहाँ पे हमारी बहुत सारी रिफाइनरीज मौजूद है सर। और जो तेल हम लोग पर्शिया से या पर्शियन गल्फ से उठाते हैं या हम वेस्ट अफ्रीका से वेस्ट एशिया से, इवन वेस्ट अफ्रीका से भी हम तेल लेते हैं सर, लाइक नाइजीरिया, तो वो तेल वहाँ पे उन रिफाइनरीज में आता है और कहीं ना कहीं वो हमें नज़दीक पड़ता है अगर हम उसे ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में देखें। ठीक है सर, as compared to the entire placement of coal in the country, this belt is really rich with respect to that. So, what are the reasons? सो वी कैन से स्किल्ड लेबर फोर्स भी नहीं है हमारे पास, जो वहाँ पे है अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो कई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू वी कैन से पुअर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक कारण वो भी है सर। दूसरी कारण सर ये भी है कि इस एरियाज़ में जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है वो ट्राइबल बेल्ट में मौजूद है सर। और ट्राइबल्स के साथ एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि उनके ऑनरशिप राइट्स जो है वो कई, अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात करें उसमें भी उन्हें रेजिडेंस का बिल्कुल इजाज़त है, बट ऑनरशिप जो है वो उन रिसोर्सेज के ऊपर उनकी नहीं है, तो ये पूरी तरीके से स्टेट ऑन करती है। तो सर इस वजह से भी उनको बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, बट हम ये नहीं कह सकते कि बेनिफिट बिल्कुल पहुंच नहीं रहा है सर, क्योंकि जहाँ पे भी ये माइनिंग एरियाज़ लोकेटेड है वहाँ पे गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जो भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लाइक वेदांता हो गया, टाटा हो गया, तो ये सब की सब वहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी डेवलप करती हैं। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ जमशेदपुर सर, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है अगर हम उसको दूसरे एरिया के साथ कंपेयर करें सर। मगर से जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल्स जो हैं, हम अभी ट्राइबल्स के लिए सर हमारे पास दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें रिहैब करने में भी अनसक्सेसफुल हुए कहीं ना कहीं, बावजूद इसके कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 इज़ देयर सर। बिफोर दैट आई ऑलरेडी सेड कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इज़ देयर, बट यहाँ पे सर अवेयरनेस दोनों साइड नहीं है, लाइक ट्राइबल्स को भी नहीं है एंड ऑफिसर्स को भी नहीं है। हमने देखा अभी रिसेंटली ट्राइबल्स एंड ऑफिसर्स की फाइट हो रही थी, एंड ऑफिसर्स ने ये JNK का भी केस है सर कि ऑफिसर्स की सेड के यू डोंट हैव द राइट टू कम हियर, बिसाइड ऑफ द फैक्ट दैट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स है एंड जो ट्राइबल्स है उनको ये राइट देता है। तो सर यहाँ पे हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमारे ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, और सर मैं ये दोबारा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सोसाइटी को भी हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली सिविल सोसाइटी एंड जो NGOs है सर, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। What I personally feel is that you completely missed out the left-wing extremism thing. It also has a major role to play with respect to mineral exploration. That definitely a negative one, but yeah. Sir, left-wing extremism in past we can see is a big challenge. Why? Because sir, in 2019, according to Ministry of Home Affairs, 11 states are affected by it and 96 districts are there. बट रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर इन्होंने हाईलाइट किया कि इट वाज रिड्यूस टू 42 डिस्ट्रिक्ट ओनली सर, एंड मोर ओवर हमने कई एरियाज़ में, लाइक अगर हम यूपी की बात करें, इट वाज बैक देयर इन 2019। इवन आज भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट है वहाँ यूपी इज़ मेंशन, अभी उन्होंने सर इसे अपडेट नहीं किया है, बट यस इसके बारे में आ चुकी है इन्फॉर्मेशन कि यूपी हो गया, इसको हमने नक्सल से फ्री करवाया है। अभी कुछ ही एरिया जैसे अगर हम नॉर्थ आंध्र देख रहे हैं, केरला के कुछ पॉकेट्स हैं सर, छत्तीसगढ़ के कुछ पॉकेट है, अगर हम जैसे देखें बस्तर जो प्लेट्यू का रीजन था सर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, मगर हमारे प्रोएक्टिव स्टेप जैसे कि कोबरा बटालियन होगी सर, जैसे कि लोकल पार्टिसिपेशन होगी, इसकी वजह से हमने बहुत हद तक उस पर कंट्रोल पा लिया है। तो अब वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं हम है, बिल्कुल डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी तो बड़ा चैलेंज है, बट 2006 में जैसे मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, बट राइट नाउ सर हमने उसे बहुत हद तक कर पा लिया है, तो उसको हम एक फैक्टर ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बट नॉट अ बिग फैक्टर सर। You made a mention of Cobra Battalion. So, to curtail in the ill effects of left-wing extremism, government came up with something called as Salwai Judum. Do you have any idea about it? सॉरी सर, Salwai Judum. सलवाई Judum. सलवाई जुडम, यस सर, लाइक हमारे यहाँ पे जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनी है ना सर, वैसे ही वहाँ पर थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इलीगल डिक्लेयर किया है क्योंकि सिविलियंस के हथियार हाथ में हथियार देना इट इज़ नॉट राइट। उसी बेस पे हमारे पास यहाँ विलेज डिफेंस कमेटीज़ भी हैं, बट अभी तक इस पर सर कोई जजमेंट आया नहीं है, तो अभी हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सर। रफ़ाकत, आप रफ़ाकत अजीज़ लिखते हैं, पर सरनेम यूज़ नहीं करते हैं, भट्टी। जी सर। अब ट्राइबल्स में भट्टी, गोरसी, these are different surnames used.
What is the significance of these? How are they different from one another? सर बट्टी जो है ये डिनोट करता है दो चीज़ें सर। पहला मेरा क्लैन, क्योंकि गुर्जर्स के अंदर क्लैन है, क्योंकि गुर्जर्स जो थे सर ये पहले हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये एक एलिमेंट हमारे अंदर है आज भी गोत्र का। मगर हिंदू थे धर्म से इस तरह अलग है कि हिंदुइज्म में गोत्र एक्सोगैमी होती है और हमारे यहाँ पे गोत्र एंडोगैमी होती है सर। तो ये मेरे क्लैन को डिनोट करता है। गुज्जर जो है उसके अंदर कई क्लैन है, जैसे कि खटाना हो गया, इस तरीके से कई हो रहे, पौसवाल हो गया, इसी तरीके से मेरा क्लैन है। उससे दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि मेरा डिसेंट कहाँ से है। पंजाबी डिसेंट है हमारा सर, वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, तो ये बताता है कि हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। जी सर। अभी बहुत डिस्कशन रही ST स्टेटस देने की पहाड़ीज को। What do you know about the legality of the issue? How will government give ST status to pahadis legally? What they need to do? ओके सर, वी हैव अ प्रोसेस इज देयर सर। सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या यूटी होती है, वो किसी एक ट्राइब का नाम रिकमेंड करती है सर। फिर ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के पास, फिर जब वो उसको ग्रीन फ्लैग दे देते हैं सर, उसके बाद ये जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जब वहाँ से भी इसको ग्रीन फ्लैग मिल जाता है, फिर ये नेशन कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास जाता है। जब वो भी इसे ग्रीन फ्लैग दे देते हैं, उसके बाद सर ये कैबिनेट के पास जाता है। कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद एक बिल तैयार किया जाता है, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 जो है उसको अमेंड करने की बात करता है। उसके बाद सर ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है एंड फाइनली अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 प्रेसिडेंट से असेंट देते हैं। पहाड़ी की जहाँ तक सर बात है, इस बार जो मॉनसून बजट आने वाला है, इसमें 32 बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे, जिसमें से पहाड़ी को जो ST स्टेटस मिलने वाला है सर, वो भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। How many budgets, how many sessions of parliament are there? How many are recommended by the constitution and how many actually are there? सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि 6 मंथ से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए, बट राइट नाउ वी हैव 3, वी हैव बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन सर। Tell me something about your mother language, Gojri. Have you gone through any Gojri literature lately? Do you know any Gojri poet or Gojri author? Yes sir, a lot are there. We have Rafiq Anjum sir. Right now he is a professor in Government Medical College श्रीनगर। इनकी कई किताबें हैं, जैसे कि पूरा कागज़, दिल दरिया, बंजारा। इसके अलावा सर जावेद राई सर, ही इज़ फ्रॉम चंडक, ही इज़ अ वेरी बिग स्कॉलर इन गोजरी लिटरेचर। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, गोजरी लोकगीत, गुज्जर और गोजरी, गुज्जर ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट पोइट्री के हिसाब से गुज्जर लोकगीत है सर, और गोजरी में बैत होते हैं सर, बिल्कुल जो म्यूज़िक की तरह हमारे यहाँ अगर मैरिज होती है उसमें भी गाए जाते हैं, या अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई खुशी का मौका, अलग अलग मौक़ों पे गाए जाते हैं सर। तो जो विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लव होते हैं, इट्स यस। गुजर्स की जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में? सर सबसे ज़्यादा गुज्जर जो हैं किस डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली हैं सर? सर पूंछ में है 36.9% सबसे ज़्यादा, मगर कंसनट्रेटेड अगर देखेंगे वो पूंछ और राजौरी रीजन में है। इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है सर, क्योंकि जब गुज्जर जम्मू कश्मीर में आए थे सर, तो ये चरवाहे हैं, हम पेस्टोरल कम्युनिटी है हमेशा से सर। तो पीर पंचाल का जो एरिया था, यहाँ में अच्छी मैडोज़ मिलती थी, जिन्हें हम लोकली मर्ग कहते हैं। तो सर इसलिए हम यहीं पे कंसनट्रेटेड आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे, और कश्मीर में भी आपको वही मिलेंगे सर जहाँ पे मैडोज़ होंगी, क्योंकि जो हमारे जानवर होते हैं सर उनको वहाँ चराते हैं। ओके, ये बताइए कि रफ़ाकत का मतलब क्या होता है? सर रिफ़ाकत एक अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सर कंपेनियन। कंपेनियन। और रफ़ाकत अज़ीज़ का मतलब क्या निकलता है? सर वैसे तो अज़ीज़ के भी कई मतलब हैं, जैसे आम तौर पे ये भी एक अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब प्यारा भी होता है, इसका मतलब कामयाब भी होता है, ताकतवर भी होता है, बट जो हम उर्दू लफ्ज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्यारे के लिए। तो रफ़ाकत अज़ीज़ जो है वो एक प्यारा दोस्त मैं समझता हूँ, इसका मतलब निकलता है सर। आपके डिस्ट्रिक्ट सुरनकोट में अगर आपको मैं 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूँ, सो वो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स होंगी? सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो लैक ऑफ कनेक्टिविटी है सर, जिसकी वजह से हम अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं हार्नेस नहीं कर पा रहे। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है सर इंफ्रा की, बेसिक इंफ्रा जैसे कि हेल्थ इंफ्रा नहीं है हमारे पास, और इवन सर हमारे पास जो एजुकेशन इंफ्रा भी लैक करता है। जैसे मेरे गाँव में सर अभी भी मिडिल स्कूल है, अगर आपको हाई सेकेंडरी के लिए जाना है तो कम से कम आपको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है सर। अभी तो चलो फिर रोड बन गई है सर, मगर वो भी सर अगर बारिश होगी तो यू कांट गो देयर। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई सर अमंग द यूथ। हम पूरे तरीके से, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, फार्मिंग वहाँ पे पॉसिबल इतनी होती नहीं है, जो भी होती है टेरेस फार्मिंग है,
वो भी हम वीट वगैरह ग्रो करते हैं, खारिफ क्रॉप भी हम ज़्यादा कुछ ग्रो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए सर हम गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलाई करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो फिर हमें सर ज़्यादातर मिडल ईस्ट की तरफ जैसे सऊदी, कुवैत यहाँ पे जाना पड़ता है लेबर के लिए सर। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में से किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज है वहाँ पे? सर टेरिशरी सेक्टर का, क्योंकि सर ये बैक इन 2015 गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स तो वहाँ एलोकेट किए थे रीजन्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर हम सुरन कोट की बात करते हैं तो सुरन कोट में जो ट्रेडिशनल अगर टूरिज़्म है जम्मू कश्मीर का, जिसको हम बोलते हैं पिलग्रिमेज टूरिज़्म, उसके इतने स्कोप नहीं है सुरन कोट में, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ी दरगाह नहीं है। आल्दो मंडी में है, पुंछ में है, इवन महेंद्र में भी बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस हैं फॉर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदुज़म, सिखिज़म के सबसे पुराना गुरुद्वारा भी है हवेली में। मगर हमारे यहाँ से जो टूरिज़्म बनता है वो एडवेंचर टूरिज़्म बनता है एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म बनता है। मतलब अगर आप सर वहाँ देरा की गली में चले जाते हैं, आपको जैकाल्स, मस्क डियर आसानी से नज़र आ जाएंगे अगर आप एक दिन रुकते हैं। तो सर आराम से अगर कोई वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए वहाँ आना चाहता है, एडवेंचर टूरिज़्म के लिए आना चाहता है, और सबसे अब जो नया एक टूरिज़्म इमर्ज हो रहा है सर, अभी रिसेंटली जैसे हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में जो सोलो टूरिज़्म है उसमें 35% जो है वो जम्मू कश्मीर ने अट्रैक्ट किया है दिस ईयर। तो कहीं ना कहीं सर उसका भी स्कोप बनता है। और सर पीर की गली तो वो है ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, इसके अलावा नूरी छम है, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी उस रीजन की काफ़ी ज़्यादा है सर। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि हिस्टोरिकल हमारे यहाँ पे जैसे सुरन कोट में कोट वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है, तो 1036 में जो लोहारा डायनेस्टी थी सर, उसने यहाँ पे कोट एस्टैब्लिश किया था। इसके रूल्स जो है उन पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा नूरी छम पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है, क्योंकि बहराम गला वही जगह थी जहाँ पे जहांगीर की डेथ हुई थी। तो इसके अलावा सर काफ़ी अदर सिग्निफिकेंस भी है इस रीजन की। Thank you. That is all from my side. Anybody else? ठीक है सर, should we let him go?